তাক ষ্টেনৰ পৰা খুলি আনিব দে হাতত नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कया हिंदू भूमि सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे तत्वे सकायु नमस्ते नमस्ते स्वयं स्वीकृतं न सुगम कार्ये समुत्कर्षणिस्य यशस्य कमुक्तव्रतम् दन्तः प्रजागरस्तुति प्रादिशम् विजयत्री संहता कार्यशक्ति आयस्य धर्मस्य संरक्षणम् दादा प्रणाम 1 2 3 मैं उपस्थित सकल अतिथि उत्कृष्ट निदर्शन प्रथम संघर संघर गुरु भगवान सम्मान स्वयं सेवकসকলে সঞ্চালন কৰিছে এয়া সঞ্চালনৰ এক অনুপম দৃশ্য শরীরম আদ্যম খলু ধর্ম সাধনম শরীর সুস্থ হয়ে থাকিলে মন সুস্থ হলে কাম করার প্রেরণা জাগে স্বয়ংসেৱকসকলে শৰীৰৰ সুস্থতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিদিন দৈনিক আহাত নিয়মিত শৰীৰ আহাত স্বয়ংসেৱকসকলে নিয়মিত কৰাৰ কিছু আভাস এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিছো এয়া দণ্ড সংঘৰ এক অভিনৱ অংগ গণবেশৰ লগত দণ্ড আমাৰ কাৰণে অনিবাৰ্য कर्मिका सिद्ध 1 2 3 स्वागत प्रकार 1 स्वागत प्रकार 1
शिरोमार कर्मिका 1 सावधान करो प्रतिसरा दीवारम करो 1 2 शिरोमार कर्मिका 2 करो शिरोमार कर्मिका 3 करो छत्रपति छत्रपति करो छत्रपति उन्नमित चतुष्क क्रमशः 1 क्रमशः 2 क्रमशः 3 क्रमशः 4 भेद सिद्ध भेद दीवार दय करो भेद उन्नमित चतुष्क क्रमशः 1 क्रमशः 2 क्रमशः 3 क्रमशः 4 प्रहार सिद्ध 1 2 प्रहार सूर्य भर्म चतुष्क क्रमशः 1 क्रमशः 2 क्रमशः 3 क्रमशः 4 क्रमिका सिद्ध 1 2 भुज दंड 1 2 3 अर्ध वृत्त শাখাত চলো নিয়মিত দণ্ডাভ্যাসৰ কিছু প্ৰয়োগ আপোনাৰ সবে দেখিবলৈ পালে যুদ্ধত নিজক বিনা অস্ত্ৰেৰে আত্মনিৰ্ভৰ বনোৱাৰ অন্যতম নিযুদ্ধৰ কিছু প্ৰয়োগ আমাৰ স্বয়ংসেৱকসকলে কৰিবলৈ লৈছে निजुद्ध सत्ता भूमि वंदन विभाग सा 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्ध पिता भूमि वंदन भाग सा 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्ध पिता स्थिर मुष्टि प्रहार सूर्य चक्र विभाग सा 1 2 3 4 5 6 7 8 नासिका 1 2 3 4 5 6 7 8 विशाल 1 2 3 4 5 6 7
माँ तो गुरु है ना 6 7 8 Tira musti berhar Priok 3 Termasa 1 2 3 4 6 8 6 Haksa 1 2 3 4 5 6 7 8 Urta 6 1 2 3 4 5 6 7 8 Other 6 1 2 3 4 5 6 7 8 Priyog Siddha Musti Prahar Daya Prakare Kamasa 1 2 অভিজিৎ নাচা পারবো मुष्टि प्रहार दया प्रकार 2 कर्मसा 1 2 मुष्टि प्रहार चतुष्क कर्मसा 1 इधर कर दे मार 2 मुंडा के काय लगा दिसते 3 कौन कौन कर्मसा 4 सिंहधार चतुष्क कर्मसा 1 2 3 4 2 कर्मसा 4 संयुक्त प्रयोग 800 स्थिर कर्णमूल हनु नासिका सूर्य चक्र करापू विभाग सा 1 2 नहीं 3 4 5 6 7 निजदगन अच्छा आधा पिता বিনা অস্ত্রে আত্মৰক্ষাৰ অন্যতম কৌশল নিযুদ্ধৰ কিছু প্ৰয়োগ আপোনা হবে দেখিবলৈ পালে সংঘৰ শাখাত নিয়মিত অভ্যাস হোৱা দ্বন্দ্ব যুদ্ধৰ কিছু প্ৰয়োগ এয়া স্বয়ংসেৱকসকলে কৰিবলৈ ওলাইছে মৰণাস্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ আগতে যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ আছিল দ্বন্দ্ব যুদ্ধৰ নিপুণ কৌশল প্ৰয়োগৰ আগত অস্ত্ৰ ধাৰ বাঢ়ে এয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধৰ কিছু প্ৰয়োগ अच्छा दंडले सिद्ध 1 2 3 ओके सम्मान करो क्रमशः कौन का भी है 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रमशः 2 3 हम 4 फोटो लो रहा 5 6 बुला ऐसा तो फिर 8 10 11 12 1 पीछे Pronto! था पीछे तो Silakan! आरो चले Pronto! Go! 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Proyekten! Kumbakan! Proyekten! Go! 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Proyekten! Pustakan! Proyekten! Go! 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Proyek bos! Jannati! Proyek bos! Go! 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
जा 1 2 3 जा प्रयच्छे प्रयच्छे अदलंगा प्रयच्छे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 প্রয়চ্ছদ প্রথম দাদি দ্বিতীয় দাদি পঞ্চম দাদি তলাদিন ওই দা প্রয়চ্ছদ প্রথম দাদি দ্বিতীয় দাদি পঞ্চম দাদি তলাদিন ওই দা বুঝা হাজা ওই দা বিদা দ্বন্দ্বযুদ্ধৰ প্ৰয়োগ আপোনাসবে দেখিলে এতিয়া স্বয়ংসেৱকসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিব পদবিন্যাস বিনা দ্বন্দ্বেৰে দ্বন্দ্ব আৰু দ্বন্দ্বযুদ্ধ শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়া পদবিন্যাস শুদ্ধ আৰু সুন্দৰকৈ শিকিলে দ্বন্দ্ব আৰু দ্বন্দ্বযুদ্ধত পাৰ্গত হ'ব পাৰে অনুশাসনবদ্ধতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন পদবিন্যাস এয়া স্বয়ংসেৱকসকলে পদবিন্যাসৰ কিছু প্ৰক্ৰিয়া পদবিন্যাস সিদ্ধ প্রয়োগ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 सूर्यवृत्ता चतुष्का करो स्थिति 1 2 स्थिति 1 2 स्थिति 1 2 स्थिति 1 2 अर्धविदद्वया करो स्थिति 1 2 स्थिति 1 2 प्रणीन जुगा करो स्थिति 1 2 स्थिति 1 2 3 स्थलांतर जुगा करो स्थिति 1 2 3 स्थिति 1 2 3 षट्पदी एक वारम करो स्थिति 1 2 3 4 5 6 वाममंडल कंजोड़ीन सह चतुष्का करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अर्थ वृत्त ন্যস্তি সংঘতকৈ নতুনকৈ অনা এটা প্ৰয়োগ সৰু এডাল দণ্ডেৰে নিজকে ৰক্ষা কৰাৰ লগতে শত্ৰুক কেনেকৈ পৰাস্ত কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰয়োগ আমি জাষ্টিত দেখিবলৈ পাওঁ यस्ति सिद्ध 1 2 प्रयोग 1 कोशघात प्रयोग 1 करो कोष्ठघात सिद्ध प्रयोग 2 रोध प्रयोग प्रयोग 2 करो रोध सिद्ध रोध प्रयोग 3 गुम्भ कष्ट सिद्ध प्रयोग 3 करो गुम्भ कष्ट सिद्ध गुम्भ कष्ट सिद्ध प्रयोग 4 गुम्भ कष्ट भेद सिद्ध प्रयोग 4 करो गुम्भ कष्ट भेद सिद्ध गुम्भ कष्ट भेद सिद्ध प्रयोग 5 करो गुम्भ कष्ट गुम्भ कष्ट गुम्भ कष्ट गुम्भ कष्ट सिद्ध प्रयोग 6 रोध
শিরোমার প্রয়োগ প্রয়োগ চে ক্রু শির কুম্ভ কোষ্ঠ ভেদ জঙ্ঘাস্তি অধোজঙ্ঘাস্তি শির কুম্ভ কোষ্ঠ ভেদ জঙ্ঘাস্তি অধোজঙ্ঘাস্তি সিদ্ধ সাত প্রয়োগ সাত ক্রু রোদ কুম্ভ 1 2 3 4 5 রোদ কুম্ভ 1 2 3 4 5 রোদ কুম্ভ কোষ্ঠ প্রয়োগ 8 কুম্ভ কোষ্ঠ প্রয়োগ 8 ক্রু কুম্ভ কোষ্ঠ কুম্ভ কোষ্ঠ কুম্ভ কোষ্ঠ কুম্ভ কোষ্ঠ কুম্ভ কোষ্ঠ কুম্ভ কুম্ভ কোষ্ঠ কুম্ভ কোষ্ঠ কুম্ভ কোষ্ঠ কুম্ভ কোষ্ঠ সিদ্ধ কোশ ষষ্ঠ 1 2 অর্ধ পিতা যষ্টি প্ৰয়োগৰ কৌশল প্ৰদৰ্শনৰ পিছত স্বয়ংসেৱকসকলে এতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিব সামূহিক সমতা অনুশাসনবদ্ধতা ডিসিপ্লিন 1 से 4 সংঘৰ বাদ্য ঘোষ ঘোষ
অনুশাসনবদ্ধতাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ খোচৰ তালে তালে আগবঢ়াৰ কি এক অনুপম দৃশ্য সংঘৰ খোচৰ কিছু বাদন এয়া আপোনাসৱৰ সন্মুখত আইটি কৈছে আজি জনাই থৈছোঁ আমাৰ তেতিয়া টেনশ্যন নাই কাৰণ অফিচৰ অৰ্ডাৰ আছে গ্ৰুপত দেখিছে বেকপেক লাগিব
মানিকিনি দক্ষ সংঘৰ শাখাত নিয়মিত আসন ব্যায়াম যোগ কৰা হয়। আসন প্ৰাণায়ামেৰে নিজক সুস্থ সুন্দৰ আৰু গতিশীল কৰি ৰখা হয়। সংঘৰ শাখাত নিয়মিত হোৱা আসন আৰু ব্যায়াম যোগৰ কিছু প্ৰকাৰ স্বয়ংসেৱকসকলে এতিয়া আপোনাৰ সবৰ সন্মুখত কৰিবলৈ ওলাইছে। साधन दक्ष समस्थिति तिर्यक्तारासन विभाग सह তিৰ্যক তাৰাসন। এই আসন নিয়মিত কৰিলে মেৰুদণ্ড পোন হয়, শৰীৰৰ উচ্চতা বাঢ়ে, নিতম্ব সংকুচিত হয়, পেট নিয়ন্ত্ৰিত হয়। তিৰ্যক তাৰাসন নিয়মিত অভ্যাস কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। এয়া তিৰ্যক তাৰাসনৰ কিছু প্ৰকাৰ। अर्धगति चक्रासन विभाग सह অৰ্ধকটি চক্ৰাসন। এই আসনৰ দ্বাৰা কঁকাল আৰু কামিহাড়ৰ বিকাৰ দূৰ হয়। নিয়মিত অৰ্ধকটি চক্ৰাসন অভ্যাস কৰিলে হাড় মজবুত হয়। এয়া অৰ্ধকটি চক্ৰাসনৰ কিছু প্ৰয়োগ। वीरभद्रासन प्रकार एक विभाग सह বীৰভদ্ৰাসন প্ৰকাৰ এক। এই আসন নিয়মিত অভ্যাস কৰিলে বুকু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰসাৰিত হয় তথা দীঘল শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱাত সহায়ক হয়। কান্ধ আৰু পিঠিৰ বিষ দূৰ হয়। ভৰিৰ সৰু অংশ আৰু আঁঠুৰ বিকৃতি দূৰ হয়। বীৰভদ্ৰাসন প্ৰকাৰ এক। এয়া স্বয়ংসেৱকসকলে কৰি আছে। पार्श्वकोणासन विभाग सह পাৰ্শ্বকোণাসন। এই আসনৰ দ্বাৰা কলাফুল, আঁঠু আৰু উৰুৰ শক্তিশালী হয়। ভৰি আৰু উৰুৰ বিকৃতি দূৰ হয়। বাত বিষকে ধৰি শৰীৰৰ বিভিন্ন বিষৰ পৰা এই আসন নিয়মিত কৰিলে উপশম পাব পাৰি।
प्रकार एक व्यायाम योग प्रकार एक गुरु ফন্টৰ কোৱালিটি লৈছে ফন্টৰ কাট কাট কে লবি একেবাৰে সোমাই লবি प्रकार दो व्यायाम योग प्रकार दो गुरु प्रकार तीन व्यायाम योग प्रकार तीन गुरु प्रकार चार व्यायाम योग प्रकार चार गुरु रमा सुभाषित त्रेतायं मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे कामरे युद्ध शक्ति संघ शक्ति युगे इंदराखो हुंदर चिंता धारा भारत वर्ग अखंडराखो हुंदर चिंता धारा भारत मातार সন্তান আমি কইছে লই তোর ধারা কইছে লই তোর ধারা অসমৰ নাচল ৰাজ্যভূমি মেঘালয় অৰুণাগাভূমি মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ হাতখনিৰে একেবোৰ অনাদিকাল একে সংস্কৃতি একে চিন্তাধাৰা भारत माता সন্তান আমি কইছে লই তোর ধারা কইছে লই তোর ধারা শংকৰ মাধৱ গুৰু অসমৰ ধনী বলৰাংকা অৰুণাচল লই তোর ধাৰা কইছে লই তোর भारत वर्ष अखंड राखो सुंदर चिंता धारा भारत मातार সন্তান আমি কইছে লই তোর ধারা কইছে লই তোর ধারা কইছে লই তোর ধারা কইছে লই তোর ধারা संघ दक्ष उपविशा অকণমান সূচনা আছে আমাৰ শাৰীৰিক প্ৰদৰ্শনীৰ যি কাৰ্যক্ৰম আছিল এইখিনি আছিল তাৰ পাছত বৌদ্ধিক বিভাগৰ কাৰ্যক্ৰম হ'ব সকলোৰে কাৰণে সূচনা এই কাৰ্যক্ৰম ধ্বজাৱতৰণৰ পাছত কাৰ্যক্ৰম শেষ হ'ব তাৰ পাছত আমাৰ ফুড পেকেট বিতৰণ কৰা হ'ব আমাৰ অতিথিৰ কাৰণে পিছফালে তাৰ ব্যৱস্থা আছে কাউণ্টাৰ দিয়া আছে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব স্বয়ংসেৱকসকলক বিকিৰৰ পাছত বামৃত দিয়া হ'ব আৰু তাতেই ফুড পেকেট পাব আমাৰ শাৰীৰিকত ভাগ লোৱা স্বয়ংসেৱক আৰু ভাগ নলোৱা স্বয়ংসেৱক সকলোৰ কাৰণে আমাৰ যি ঠাই
তেখেতৰ ঘৰ ফটাশিল আমবাৰীত আৰু তেখেত ফটাশিল টাউন হাইস্কুলৰ পৰা অধ্যক্ষ হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে 2013 চনত। সংঘৰ বিভিন্ন দায়িত্বত অংশগ্ৰহণ কৰি যোৱা 5 বছৰৰ পৰা এই সংঘ চালকৰ দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰি আহিছে। তেখেত লগতে এজন সুগায়ক আৰু এজন সাহিত্যিক। প্ৰায় 1 ডজনমান সংঘৰ সাহিত্য তেখেতে অনুবাদ কৰিছে বিভিন্ন হিন্দী আৰু ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা অসমীয়া ভাষালৈ। আমাৰ মাজত আৰু উপস্থিত আছে আজিৰ বিশিষ্ট অতিথি পৰমেশ্বৰ দত্ত ডাঙৰীয়া। তেখেত মঞ্চৰ মুখলে বহি আছে। তেখেতৰ মূল ঘৰ নলবাৰীৰ পকোৱাত, বৰ্তমান জাপৰিগড়ৰ নিবাসী। তেখেত অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক পদত IAS বিষয়া হিচাপে থাকি আৰু শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সঞ্চালক হিচাপে মানে এডুকেশ্যন কমিশনাৰ হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে 2006 চনত। তাৰ পিছৰে পৰা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনৰ লগত জড়িত হয়। বৰ্তমান বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পদত উপবিষ্ট হৈ আছে। তেখেত লগতে এজন সুসাহিত্যিক। বৰ্তমানলৈকে তেখেতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ মৌলিক হিচাপে লিখি উলিয়াইছে, লগতে অনুবাদ গ্ৰন্থও কেইখনমান তেখেতে ৰচনা কৰিছে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অখিল ভাৰতীয় শাৰীৰিক শিক্ষণ প্ৰমুখ আদৰণীয় সুনীল কুলকৰ্ণীজী। তেখেতৰ মূল ঘৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত। শৈশৱ কালৰ পৰা তেখেত স্বয়ংসেৱক। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত MA, MPhil আৰু B.Ed ডিগ্ৰী লোৱাৰ উপৰিও শিক্ষা সাংকৰি তেখেতে নাগপুৰৰ এখন কলেজত অধ্যাপনা কৰিছিল 7 বছৰৰ বাবে। তাৰপিছত তেখেতে প্ৰচাৰকৰ জীৱন আৰম্ভ হয় 1987 চনত, 1987ত। পুনতে তেখেতে গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰচাৰক হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়। তাৰপিছত তেখেতে ডিব্ৰুগড় বিভাগ প্ৰচাৰক, গুৱাহাটী বিভাগ প্ৰচাৰক আদি বিভিন্ন দায়িত্বত থাকি কৰ্মনিৰ্বাহ কৰে। 1915 চনলৈকে তেখেত অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থাকে। শেষত তেখেতে অসম ক্ষেত্ৰ প্ৰচাৰক প্ৰমুখ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তেখেতে বৰ্তমান অখিল ভাৰতীয় শাৰীৰিক শিক্ষণ প্ৰমুখৰ দায়িত্ব যোৱা 2015 চনৰ পৰা এইটো বিষয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। এই চেগতে মই আজিৰ অনুষ্ঠিত এই প্ৰগ্ৰামটোৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছু শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব খুজিছোঁ। এই অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ যিখন খেলপথাৰ, সেইখন আমাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত অক্ষয় কলিতা ছাৰলৈ আমি আমাৰ কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। লগতে তেখেতৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে আমি তেখেতসকলেও আমাৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ। তেখেতে এই পথাৰখন দিয়াৰ উপৰিও এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীকোঠা, অডিটৰিয়াম ইত্যাদিও আমাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুযোগ দিছে। ইয়াৰ লগতে আমি পূব গুৱাহাটী বিহু কমিটিলৈও আমাৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে।
কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ জিলা প্ৰশাসনলৈও আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তেখেতলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে। গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰক্ষী প্ৰশাসনলৈও আমাৰ শলাগৰ শৰাই যাচিলোঁ। ইয়াৰ লগতে যে টেণ্ট হাউচ, লাইট, ছাউণ্ড, প্ৰিণ্টিং কৰ্মৰ লগত জড়িত সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ তেখেতলোকৰ ওতঃপ্ৰোত কৰ্মৰাজিৰ বাবে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। মিডিয়াৰ লগত জড়িত সমূহ কাৰ্যকৰ্তালৈ আমাৰ শলাগৰ শৰাই যাচিছোঁ। উদ্যোগ নগৰৰ যিসকল সদাশয় পৰিয়ালে আজিৰ এই ফুড পেকেটবিলাক দি যোগান ধৰি আমাক কৃতাৰ্থ কৰিছে, তেওঁলোকৰো শলাগ আমি লৈছোঁ। সৰ্বশেষত আজিৰ সভাত উপস্থিত থাকি সভাৰ সুস্থ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আমাৰ মুখ্য অতিথিদেৱ লগতে সদাশৰ ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই আজি শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠানটি সামৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আজিৰ বৌদ্ধিক প্ৰদান কৰিবলগীয়া মাননীয় সুনীল কুলকৰ্ণীজীক তেখেতৰ বৌদ্ধিক প্ৰদান কৰাৰ আগত আৰু এটা বাস্তৱিক চমু ভাষণ দিবলৈ আগ্ৰহ কৰিম আমি গুৰুপ্ৰসাদ মেধি ডাঙৰীয়াক। তাৰপিছতে সুভাষিত আৰু গীত হ'ব। তাৰপিছত মুখ্য অতিথিদেৱৰ শাৰীৰিক প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত চমু মন্তব্য থাকিব। তাৰপিছতে আমাৰ সুনীলজীৰ বৌদ্ধিক আৰম্ভ হ'ব। তো এতিয়া মাননীয় গুৰুদাক আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতৰ বাস্তৱিক ভাষণ ৰাখিবলৈ। মঞ্চ প্ৰবিষ্ট আজিৰ এই কাৰ্যক্ৰমৰ মুখ্য অতিথি মাননীয় সুনীলজী কুলকাৰ্ণীদেউ, আন এগৰাকী অতিথি পৰমেশ দত্ত ডাঙৰীয়া, সংঘৰ ক্ষেত্ৰীয় প্ৰান্তীয় অধিকাৰীসকল, দৰ্শক হিচাপে আজিৰ সভাত উপস্থিত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰোতা ভাই ভগিনী, আই মাতৃসকল আৰু মৰমৰ স্বয়ংসেৱক বন্ধুসকল, আজি বৰ্ষ প্ৰতিপদ উৎসৱ হিচাপে আমি এই কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। দৰাচলতে বৰ্ষ প্ৰতিপদ যোৱাকালি হৈ গৈছিল। ভাৰতত অনেক প্ৰকাৰৰ কাল গণনা পদ্ধতি আছে, যেনে যোগাব্দ, বিক্ৰম সম্বত, শকাব্দ, ভাস্কৰাব্দ, বংগাব্দ, শংকৰাব্দ ইত্যাদি। যোৱাকালিৰ যিটো বৰ্ষ প্ৰতিপদ দিন আছিল, সেইটো বিক্ৰম সম্বৎসৰৰ প্ৰথম দিন আছিল। এইটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি অহা কাল গণনা পদ্ধতি। যোৱাকালি আছিল চৈত্ৰ শুক্ল প্ৰতিপদ, আৰু এইটো এটা শুভ দিন বুলি ভাৰতীয়সকলে মানি আহিছে। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা সৃষ্টিৰ শুভাৰম্ভ হৈছিল, আৰু তেতিয়াই সেই দিনটোতে বৰ্ষ প্ৰতিপদ হিচাপে কাল গণনা চলি আহিছে। এই প্ৰাচীন কাল গণনা সৃষ্টিৰ আৰম্ভৰ পৰা এতিয়ালৈকে 195,58,85,101 বছৰ হৈছে। এই দিনটো বৰ্ষ প্ৰতিপদ দিন হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই আৰম্ভণিৰ পৰাই পালন কৰি আহিছে, আৰু
ই আমাৰ 6টা উৎসৱৰ প্ৰথমটো উৎসৱ হিচাপে আমি গণ্য কৰি ইয়াক প্ৰতি শাখাত বা অন্যান্য উপায়ে আমি পালন কৰোঁ। এই দিনটোতেই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ প্ৰণেতা ডক্টৰ কেশৱ বলিৰাম হেডগেৱাৰৰো জন্মদিন, আৰু সেইকাৰণে এই উৎসৱৰ দিনটোতে আমি আদ্য সংঘ চালক প্ৰণাম প্ৰদান কৰোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা আমাৰ পৰম্পৰা আগৰে পৰাই চলি আছে। তাৰ লগতে আমি সংঘনো কি এই বিষয়েও কিছু ৰাইজক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো আজিৰ এই কাৰ্যক্ৰমটো আমি কৰিছোঁ। সংঘ মানে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ মানে শাখা। শাখাতনো আমি কি কৰোঁ এই কথাটো বহুতে নাজানে। জনসাধাৰণে আমি শাখাত কি কৰোঁ ভালকে গম নাপায়। আনকি আমাৰ সংঘৰ পৰিয়ালৰো বহুত সদস্যই ৰাতিপুৱানো এওঁলোকে গৈ পেলাই কি কৰে এই কথাটো নাজানে। গিৰিয়েকে ৰাতিপুৱা গৈ শাখাত কি কৰে ঘৈণীয়েকে নাজানে, এনেকুৱা স্বয়ংসেৱকো আমাৰ আছে। তো সংঘৰ মূল কাম হ'ল শাখা। শাখাৰ জৰিয়তে স্বয়ংসেৱকৰ গুণ বৃদ্ধি কৰা, আৰু এই স্বয়ংসেৱকৰ গুণ বৃদ্ধি কৰাৰ জৰিয়তে সংঘৰ স্বয়ংসেৱকসকলৰ চৰিত্ৰৰ উন্নতি ঘটোৱা, মানদণ্ডৰ উন্নতি ঘটোৱা। আমাৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিৰে বিকাশ মানে হ'ল শৰীৰ, মন, প্ৰাণ, বুদ্ধি আৰু আত্মাৰ বিকাশ। কিন্তু এই শৰীৰ, মন, প্ৰাণ, আত্মাৰ একেলগে কাম কৰা অভ্যাসেই নাই। কিবা এটা কৰিব লগা হ'লে শৰীৰটো যদি ক'ৰবাত থাকে, মনটো ক'ৰবাত থাকে, একনিষ্ঠতা আহি নপৰে। কিন্তু আমি এই কথাখিনি, এই দুৰ্বলতাখিনি সংঘৰ জৰিয়তে দি স্বয়ংসেৱকক শৰীৰ, মন, প্ৰাণ, বুদ্ধি, আত্মা একেলগে চলাৰ যিটো অভ্যাস, এই অভ্যাসটো আমি প্ৰদান কৰোঁ। আৰু তাৰ জৰিয়তেই স্বয়ংসেৱকসকলে এটা সময়ত আদৰ্শ স্বয়ংসেৱক হিচাপে, আদৰ্শ নাগৰিক হিচাপে সমাজত নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰে। গতিকে এই গোটেইকেইটা বিষয় লৈ পেলাই বৰ্ষ প্ৰতিবদ উৎসৱ, ডক্টৰজীৰ প্ৰতি আদ্য সংঘ চালক প্ৰণাম প্ৰদান, তাৰোপৰি সংঘৰ শাখাতনো আমি কি কৰোঁ ৰাইজক আমি দেখুৱাৰ যি আমাৰ মন, সেইটো উদ্দেশ্যে, এইকেইটা উদ্দেশ্যে লৈয়ে আজিৰ এই কাৰ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আশা কৰিছোঁ ৰাইজে সংঘৰ প্ৰতি নিষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰিব। এইবিলাক দেখি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, নিজৰ আত্মীয় স্বজনক শাখালৈকে যোৱাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আৰু স্বয়ংসেৱকসকলেও মই ভাবোঁ আজি এই কাৰ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে দুগুণ উৎসাহিত হৈ পৰৱৰ্তী সময়ত শাখাৰ কাৰ্য বৃদ্ধি কৰাত মন পুতি লাগি যাব। এইখিনি কৈয়ে প্ৰাস্তাৱিক ভাষণৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। सुभाषित हिंदुवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। সকলো হিন্দু সহোদৰ, কোনো হিন্দু পতিত নহয়। হিন্দুৰ ৰক্ষাই মোৰ দীক্ষা আৰু সমানতাই মূল মন্ত্ৰ। নমস্কাৰ। ব্যক্তিগত গীত। সহস্র কণ্ঠে বন্দন
সহস্র কণ্ঠে বন্দনা গানে কৰিছো প্ৰণাম হে কেশৱ মহান যুগে যুগে ৰব সংঘ কীৰ্তিত নতুন যুগৰ হব নব আহ্বান জাগৰণী মন্ত্ৰেৰে জগাই তুলিছা তুমি জাগৰণী মন্ত্ৰেৰে জগাই তুলিছা তুমি ভাৰতীৰ অতীতৰ গৰিমাৰ টান হে কেশৱ মহান হে কেশৱ মহান জাতিৰ জড়তা কৰি মখি মোৰ কৰ্মময় জীৱনৰ দিলা তুমি সুৰ লক্ষ লক্ষ আই ভাৰতীৰ সন্তানে তোমাৰ পথত কৰে জীৱনৰ দান হে কেশৱ মহান হে কেশৱ মহান যদিও বা নাই তুমি মৰ জগতত বিৰাজিছা আজি তুমি কোটি প্ৰাণত কোটি পৰাণে আজি বীৰ বেশেৰে সাজি গাইছে জননী বিজয়ৰ গান হে কেশৱ মহান হে কেশৱ মহান আজি তব জনমৰ পুণ্য দিনত তোমাৰ আশীষ লৈ আমাৰ শিৰত ভ্ৰান্ত মানৱক দেখুৱাই কৰ্মৰ পথ উৰিব পুনৰ আজি ভগৱানী চান হে কেশৱ মহান হে কেশৱ মহান সহস্ৰ কণ্ঠে বন্দনা গানে সহস্ৰ কণ্ঠে বন্দনা গানে কৰিছো প্ৰণাম হে কেশৱ মহান হে কেশৱ মহান হে কেশৱ মহান হে কেশৱ মহান মঞ্চত উপবিষ্ট মেধি ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় কুলকাৰ্ণী ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত থকা স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰ প্ৰান্ত সকলোৰে কাৰ্যকৰ্তাসকল, মোৰ সন্মুখত থকা স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সেৱকসকল, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আৰু এই সভাত অহা সাংবাদিক বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে মেধি ডাঙৰীয়াই আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্যৰ ব্যাখ্যা কৰিছে। শাখা সম্বন্ধে আমাৰ বহু মানুহৰে জ্ঞান কম আৰু সেইবাবে আজি ইয়াত যিখিনি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে শৰীৰ চৰ্চাৰ ওপৰত, সি সঁচাকৈয়ে অতি আকৰ্ষণীয় আৰু অতি প্ৰশংসনীয় হৈছে। আৰু এই কাৰ্যটো মই ভাবোঁ যদি আমি
অসমৰ প্ৰত্যেক ঠাইতেই এই ধৰণে কিছুমান কাৰ্যক্ৰম হাতত লওঁ, বোধ হয় নহয় নিশ্চিতকৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই এই শাখাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব, আকৰ্ষিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজক নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু এটা সংশোধিত ৰূপত সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সহায়ক হ'ব। আপোনালোকে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ শৰীৰটো যেতিয়া বেয়া থাকে আমাৰ কোনো কথাতেই মন নাযায়। অৰ্থাৎ আমি যদি একাগ্ৰ চিত্তে কিবা এটা কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে, আমাৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে, বাণিজ্য ক্ষেত্ৰ সকলোতেই আমি এই মন পুতি কামটো কৰিব নোৱাৰিম যদিহে আমাৰ শৰীৰে আমাক সহযোগ নকৰে। শৰীৰে আমাক কেতিয়া সহযোগ কৰে? যেতিয়া শৰীৰ সুস্থ থাকে। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে স্বাস্থ্য আৰু সময় এই দুইটা বহু মূল্যৱান বস্তু, কিন্তু আমি সকলোতকৈ যদি অৱজ্ঞা কৰা বস্তু আছে তেতিয়াহ'লে স্বাস্থ্য আৰু সময়। আমি এই দুটাৰ প্ৰতি সজাগ নহওঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহি নাপায় যে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ সাংঘাতিক অৱনতি হৈছে, সময় একেবাৰে অপচয় হৈছে, তেতিয়া আমাৰ হুঁচ আহে যে আমি ইমান দিনে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ নহ'লোঁ বা সময়ৰ প্ৰতি সজাগ নহ'লোঁ। গতিকে এই যে শৰীৰ চৰ্চা আজি যিখিনি দেখুৱাইছে সাম্যকভাৱে হ'লেও এই শৰীৰ চৰ্চাই সঁচাকৈয়ে নৱপ্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগে আৰু আমি শৰীৰ সুস্থ ৰখাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। শৰীৰ সুস্থই নহয়, স্বাস্থ্য শক্তিশালী হ'বৰ বাবেও এটা উপাদান, আৰু শক্তিশালী নহ'লে আপুনি নিজক প্ৰতিৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা বা হিন্দু সভ্যতাই কোনোদিনেই বাহিৰৰ সভ্যতাক বা বাহিৰৰ দেশক আক্ৰমণ কৰা নাই। কিন্তু এইটো সঁচা কথা যে আমাৰ দেশ বহুবাৰ আক্ৰান্ত হৈছে, বহুবাৰ আমাৰ দেশৰ প্ৰতি আমাৰ সভ্যতাক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰতিৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰতিৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আমি নিজে শক্তিশালী হ'ব লাগিব। দুৰ্বল মানুহ এজনে ক্ষমা কৰা বা দুৰ্বল মানুহ এজনে কোৱা যে আমি যুঁজ বাগৰ নকৰোঁ, সেইটোৰ কোনো এটা অৰ্থ নাথাকে। কিন্তু যিজন শক্তিশালী পুৰুষ বা যি শক্তিশালী দেশ, সেইখন দেশে যেতিয়া ক'ব যে আমি যুঁজ বাগৰ নকৰোঁ, আমি শান্তিপ্ৰিয়, তেতিয়াহে সেই শান্তিৰ এটা অৰ্থ থাকে। গতিকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লেও আমি শক্তিশালী হ'ব লাগিব, আমি সুস্বাস্থ্যৰ হ'ব লাগিব। আমাৰ দেশখনক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি দেখা যায় বিশ্বত এতিয়াও এটা উচ্চমান বিশিষ্ট হ'ব পৰা নাই। তাৰ মূল কাৰণ আমাৰ জনসংখ্যা অন্যতম। যি নহওক, সেইটো এটা সুকীয়া বিষয়। মই ক'ব খুজিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা সময়ত আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ এই আজি শাখাত যিবোৰ দেখুওৱা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ শৰীৰ চৰ্চাৰ কিছুমান ব্যৱস্থা আছিল। কলেজবোৰত NCC আছিল, কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে আজি কিছু বছৰৰ পৰা দেখিছোঁ সেইবিলাক যেন নাইকিয়া হৈ গ'ল, আৰু আমি সকলোৱেই টিভিৰ আগত বহিবলৈ লাগি গ'লোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব? আমাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব, যাৰ ফলত আমাৰ মনৰ বৌদ্ধিক বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত হ'ব, আৰু আমি একোজন সৰুপা অকৰ্মান্য নাগৰিক হিচাপে আমি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, আৰু শেষত নিজে কাম বন নকৰি আমি চান্দা তুলি পেলাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈছে আমাৰ
বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিণতিৰ এক নিদৰ্শন। তাক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে আজিৰ যি মই ব্যৱস্থা দেখিছোঁ, যি শৰীৰ চৰ্চা দেখা হ'ল, সেই শৰীৰ চৰ্চাক দেখি মই এটা আশা দেখিছোঁ, আশাৰ ৰেঙনি দেখিছোঁ যে এই ধৰণে বোধ হয় আমাৰ যদি যুৱক সমাজক আমি আকৰ্ষিত প্ৰেৰিত কৰি তেখেতসকলক তেওঁলোকক এইদৰে আমি যদি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ, তেতিয়া চাগে তেওঁলোক এটা অতি সুনাগৰিক হোৱাৰ বাবে সক্ষম হ'ব। মই বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, শেষতো এটাই কথা যে শৰীৰৰ একদম সৰু ধৰ্ম সাধন, সকলো ধৰ্ম সাধনা কৰা হয় যদি শৰীৰৰ সাধনা কৰা হয়। গতিকে শৰীৰ চৰ্চাত আজি ইয়াত উপস্থিত থাকি কৰ্মকৰ্তাসকলে মোক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ। আৰু মোৰো আজি এইখন দেখি শৰীৰ চৰ্চা দেখি মই অতিশয় আপ্লুত আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াত যিসকলে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক, মোৰ এই কামনা থাকিল। আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো ৰাইজলৈকে আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ কাৰ্যক্ৰমৰ মুখ্য অতিথি মাননীয় परमेश्वर दत्त डांगरिया, माननीय महानगर संघचालक श्री गुरुप्रसाद मेधी डांगरिया, এই সভাত উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ আই মাতৃসকল, এই কাৰ্যক্ৰমৰ সংঘপ্ৰেমী নাগৰিকসকল, সংঘৰ ক্ষেত্ৰীয় প্ৰান্তীয় অধিকাৰীসকল আৰু আত্মীয় স্বেচ্ছাসেৱক বন্ধুসকল, যোৱা 7 বছৰৰ পৰা অসমৰ বাহিৰত মোৰ কেন্দ্ৰ হোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া কোৱাৰ অভ্যাসটো অলপ কমিছে। বোধহয় এই কাৰণে নেকি যে কাৰ্যক্ৰমৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে মোক কৈছে যে আপুনি হিন্দীতে ভাষণ দিয়ক। তেওঁলোকৰ আজ্ঞা মতে মোৰ মন্তব্য মই আজি हिंदी को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शारीरिक विभाग ने अपनी वार्षिक योजना में देश भर के जितने महानगर और जिला केंद्र है उन सभी स्थानों पर शारीरिक प्रधान कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसी एक योजना बनाई। इस योजना का मुख्य कारण ऐसा था कि गत 97 वर्ष से संघ का कार्य चलते आ रहा है। पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना करने के पश्चात अभी 100 साल पूरे होने के लिए 3 साल बाकी है। लेकिन इन 97 वर्षों में संघ का नाम तो बहुत बड़ा हो गया, किंतु अभी भी समाज के कुछ अपने बंधु ऐसे हैं कि जिनके लिए संघ अभी भी एक अजूबा है। संघ उनके लिए एक आश्चर्य भी है और संघ उनके लिए एक रहस्य भी है। आश्चर्य इसलिए कि देश भर में कई ऐसी संस्थाएं समाज ने देखी है कि जो जन्म होने के पश्चात कुछ साल तक रहती है और फिर विलीन हो जाती है। कुछ संस्थाएं
उनके इतने भाग होते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह संस्था ऐसी है कि जब से शुरू हुई तब से आज तक उसके 6 प्रमुख बदल गए, तो भी किसी के नाम से एक अलग संगठन किसी ने स्थापन किया, इसके 2 भाग हो गए, 3 भाग हो गए, 5 भाग हो गए, ऐसा नहीं हुआ। जब से जन्म हुआ तब से आज तक अनवरत काम करता हुआ यह संगठन समाज के लिए एक आश्चर्य की बात हो गया। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, सालों साल ये काम क्यों करते हैं, इसके लिए भी उनको आश्चर्य होता है। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जब चल रहा था, उस समय संघ के कार्यकर्ताओं ने जयप्रकाश जी के इस आंदोलन में उनको सहायता की थी। गांवों गांव संघ के स्वयंसेवक साइकिल मार के जाते थे। उस समय जो जरूरीकालीन अवस्था आ गई थी, उसके विरुद्ध प्रचार करते थे। लेकिन यह सारा करते करते अपने खर्चे से और अपने घर का खाना खाते हुए ये सारा करते थे। तो ये सारा देखकर जयप्रकाश जी को बड़ा आश्चर्य होता था। उन्होंने कहा संघ के कार्यकर्ताओं को कि मैं एक बार इन सारे लोगों से मिलना चाहता हूं। बैठक रखी गई और उस बैठक में स्वयंसेवकों ने अपना परिचय देते समय अपना नाम कहा और अपनी संघ आयु कही। 3-4 स्वयंसेवकों ने ऐसा कहने के पश्चात जयप्रकाश जी बोले कि आपका नाम तो समझ में आया, आप क्या करते हैं ये भी समझ में आया, लेकिन ये संघ आयु जो आपने बताई ये क्या है? आप आपकी आयु नहीं बता रहे हैं, आप संघ आयु बता रहे हो। ये संघ आयु क्या है? तो वहां के कार्यकर्ताओं ने उनको बताया कि ये संघ आयु बताता है, इसका मतलब इतने वर्षों से ये संघ का कार्य कर रहा है। तो जयप्रकाश जी को आश्चर्य हुआ कि कोई बता रहा है मेरी संघ आयु 30 वर्ष है, कोई बता रहा है 40 वर्ष है, कोई बता रहा है 25 वर्ष है। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि साधारणतः कोई व्यक्ति एखादा काम जब शुरू करता है तो 7-8 वर्ष के बाद में वो उस काम को दूसरी दिशा देता है, वो कुछ अलग कार्य करने लगता है। लेकिन संघ के ये स्वयंसेवक आश्चर्य रहे कि 30-30 साल से 40-40 साल से एक ही कार्य करते आ रहे हैं। जैसा जयप्रकाश जी को आश्चर्य हुआ, वैसा ही आश्चर्य समाज के कई बंधुओं को, बहनों को होता है। और दूसरी एक गलतफहमी भी है कि संघ यह मुस्लिम विरोधी है, संघ यह क्रिश्चियन विरोधी है, संघ यह अतिरेकी संगठन है। ये गलतफहमी अपने आप उत्पन्न हुई नहीं है, नियोजित रीति से इस गलतफहमी को फैलाया गया। संघ क्या है इसके बारे में लोगों को समझ तो है, कारण समाज संघ के स्वयंसेवकों को देखता है। संघ की शाखाएं अलग अलग बस्ती में जब लगती है तब संघ के स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं ये समाज तो देखता है। लेकिन कुछ नेताएं ऐसे हैं कि जिनको जन्म से ही संघ का विरोध यही उनके रक्त में भरा हुआ है क्या पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि संघ मैंने इसी जैसी संगठन है, संघ के पास में बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री है, संघ के ट्रेनिंग में राइफल का, बंदूक का ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसी अलग अलग गलतफहमियां राजकीय नेताओं के
मुख से निकलती है। तो जो समाज थोड़ा अपने विचार, अपने मन को प्रश्न पूछकर अपना मंतव्य नहीं बनाता है, ऐसे लोगों के लिए मन में एक संभ्रम उत्पन्न होता है कि वास्तव में संघ जो हम देख रहे वो है या जो नेता बोल रहे वो है। उनके इन संभ्रम को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निश्चित किया कि हम अभी समाज के पास में जाएंगे। जिला केंद्रों पर और महानगरों के केंद्रों पर शारीरिक प्रधान कार्यक्रम करते हुए संघ अपनी शाखाओं में क्या करता है यह समाज को दिखाएंगे और प्रत्येक शाखा का एक वार्षिक उत्सव करके बस्ती बस्ती के लोगों को भी हम बताएंगे कि संघ की शाखा में वास्तव में होता क्या है। ये जो कार्यक्रम आज आप लोगों ने देखे, इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से एक अनुशासित, साहसी, धैर्यवान, मतलब जिसका पेशेंस जिसके पास में है, दमदार यानी स्टैमिना जिसका अच्छा है, ऐसे स्वयंसेवक चरित्रवान, ध्येयनिष्ठ, निस्वार्थी और जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता उत्पन्न होती है, ऐसे सारे गुणों का विकास इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। संघ के सारे कार्यक्रम कोई भी केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। संघ की शाखाओं में जब यह कार्यक्रम होता है, ये सारे कार्यक्रम स्वयंसेवक करते हैं, तब समाज को एक साहस आता है कि हमारी रक्षा करने वाला एक युवकों का दल हमारे बस्ती में है। माता बहनों को बिना मांगे एक सुरक्षा प्रदान करने वाली ऐसी एक शक्ति आज हमारे पास में है। जहां पर कुछ अनैतिक कार्य चलते हैं, उन अनैतिक कार्यकलापों का मन में एक भय निर्माण करने वाली ऐसी एक शक्ति संघ की आज खड़ी है। एक चरित्रवान युवकों का दल जब समाज देखता है तो समाज को भरोसा होता है कि केवल सुबह का वृत्तपत्र पढ़ते समय हम समाज के अधोगति की बात पढ़ते हैं, उनके स्थान पर एक ऐसे चरित्रवान युवकों का दल भी हमारे देश में है कि जिसके सामने लक्ष्य है परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, अपने राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर हम ले जाएंगे, भारत माता को फिर से विश्वगुरु का स्थान हम प्राप्त कर देंगे। ऐसे निश्चय के साथ बस्ती बस्ती में कार्य करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं का, युवकों का एक दल जब समाज देखता है, तब समाज को आज भी समाज ठीक है इसका भरोसा होता है। और इसीलिए संघ ने आज के जो शारीरिक कार्यक्रम आपने देखे, इस प्रकार के कार्यक्रम सभी स्थानों पर करने का एक निश्चय किया। लेकिन स्वाभाविक कुछ लोगों के मन में ऐसा संदेह आएगा कि ये जो प्रयोग किए इससे होगा क्या। आज तो सभी जगह राइफल का और एटम बॉम्ब का युग है, उसमें ये दंड के प्रयोग, यष्टि के प्रयोग करके ये क्या लोग देश की रक्षा कर पाएंगे। तो आपको निश्चित पता होना चाहिए कि जब सेना लड़ती है तो केवल अस्त्र लड़ते नहीं है, अस्त्र के पीछे एक मन रहता है, वो मन जितना साहसी है, उस साहसी मन से व्यक्ति युद्ध करता है। और इसलिए हाथ में शस्त्र न रहते हुए भी 8 महारथियों से अकेले अभिमन्यु ने युद्ध किया है। महारथी चारों ओर है, हाथ के सारे शस्त्र समाप्त हो गए हैं, लेकिन जो सामने रथ का चक्र पड़ा हुआ है उसको उठाकर इन 8 महारथियों से युद्ध करने वाला अभिमन्यु, उसके मन की जो ताकत थी वो ताकत लड़ती है। अभी कुछ दिन पहले शैतान सिंह
लद्दाख में जो लड़े हैं उनकी कहानी आई थी। चीनी सेना के विरुद्ध सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त होने के पश्चात भी 48 घंटे वो उसने युद्ध किया है, सेना को सामने आने नहीं दिया। ये जो प्रखर साहस है, यह साहस इन दंड और यष्टि के माध्यम से निर्माण होता है। ऐसा एक चरित्रवान और साहसी व्यक्ति निर्माण करने का संघ का प्रयास है। हमारे महानगर संघ चालक जी ने बताया कि संघ का उद्देश्य यह व्यक्ति निर्माण का है। संघ का कार्य केवल व्यक्ति निर्माण यही है। मीडिया के माध्यम से समाज को ऐसा लगता है कि संघ ये कर रहा है, संघ वो कर रहा है, संघ स्कूल चला रहा है, संघ और कुछ विश्व हिंदू परिषद को भी चला रहा है, एक छात्रों का संगठन भी चला रहा है। संघ कुछ नहीं करता। संघ केवल अपनी शाखा लगाता है और शाखाओं में आप लोगों ने जो कार्यक्रम देखे वही कार्यक्रम करता है। लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो गुणवान व्यक्ति निर्माण होता है, वह गुणवान व्यक्ति कुछ नहीं छोड़ता। समाज में जितने क्षेत्र आप देखते हैं, उन सारे क्षेत्रों में काम करने वाले संघ के ऐसे चरित्रवान स्वयंसेवक लगे हुए हैं और इसलिए समाज को लगता है कि इतना अच्छा कार्य जो कर रहा है, इसके पीछे संघ की ताकत खड़ी है। संघ के नाम से या संघ इन सबको डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद हो, विद्या भारती हो, अखिल भारतीय कल्याण आश्रम हो, राष्ट्र सेविका समिति हो, अधिवक्ता परिषद हो, एनएमओ नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, 40 के ऊपर ऐसी संगठन है जहां पर संघ के कार्यकर्ता तन मन धन देकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये सारी संस्थाएं स्वायत्त है, स्वतंत्र है, उनकी अलग बॉडी है। संघ उनको डोमिनेट नहीं करता। ऐसे ही इन सारे क्षेत्रों के जैसे ही संघ के कुछ कार्यकर्ता यह राजनीति में गए हैं। लेकिन मीडिया इस प्रकार का एक चित्र खड़ा करती है, या बाकी जितने राजकीय नेता हैं वे चित्र ऐसा खड़ा करते हैं कि आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करता है। वास्तव में बीजेपी का और संघ का दूसरा कोई संबंध नहीं है। संघ के स्वयंसेवक वहां है, चरित्रवान स्वयंसेवक वहां पर गए हैं, जिन गुणों के माध्यम गुणों का निर्माण शाखा में होता है, उन गुणों का उपयोग करके वे राजनीति में कार्य कर रहे हैं। एक अलग कुछ बाकी सबसे हटकर ऐसी एक पार्टी उनको दिखती है, इसलिए उनको लगता है कि यह संघ ही उनको ये सारी चला रहा है। लेकिन संघ केवल व्यक्ति निर्माण करता है, जिसको ग्रीक तत्ववेत्ता डाइजेनिस, वो जिनको आदमी कहता है, या विवेकानंद जिसको मैन विथ कैपिटल एम ऐसा कहते हैं, वही मैन विथ कैपिटल एम या डाइजेनिस का आदमी डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वयंसेवक है। ग्रीक तत्ववेत्ता डाइजेनिस एक बार दिन के सूर्य प्रकाश में हाथ में लालटेन लेकर निकला और उस लालटेन के प्रकाश में वो कुछ ढूंढ रहा था। लोगों को आश्चर्य हुआ, इतना विद्वान व्यक्ति, उसको इतना तो समझना चाहिए कि सूर्य प्रकाश में लालटेन का प्रकाश कितना होगा, और वो ढूंढ क्या रहा है। एक ने बड़े साहस करके पूछा कि महाराज आप क्या ढूंढ रहे हैं। डाइजेनिस कहता है मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। तो पूछने वाले को आश्चर्य लगा कि ये सारे दिख रहे हैं, ये आदमी नहीं है। डाइजेनिस कहता है कि मुझे आदमी चाहिए, बौने नहीं। बौना बने जिसका सारा छोटा होता है, उसके हाथ छोटे हैं, पैर छोटे हैं, आंखें छोटी है, उसका मन भी छोटा है। इसको डाइजेनिस बौना कहता है।
और वो कहता है कि मैं जो आज समाज देख रहा हूं, ये समाज सारा स्वार्थपर हो गया है, अपने स्वयं के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में ये सोचता नहीं है। जो दूसरों के बारे में सोचता है उसको डायजेनिस आदमी कहता है। यही विवेकानंद कहते हैं। मैन विथ कैपिटल एम, यह कहने के पीछे उनका अर्थ यही है कि जिसका कैपिटल एम है, मतलब जिसकी दूरदृष्टि है, जिसका विशाल मन है, उसको मैन कहा है विवेकानंद ने। डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि हमारा स्वयंसेवक यह ऐसा ही मैन विथ कैपिटल एम या आदमी है। संघ के शाखाओं में कई बार सुभाषित होता है और उस सुभाषित में उनका कर्तव्य क्या है इसके बारे में बताया जाता है। सारा वो सुभाषित आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। आहार निद्रा भय और कामना वासना यह आदमी और पशु के लिए समान ही है। फिर फर्क क्या है दोनों में? तो उस सुभाषित के दूसरे पंक्ति में बताया है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। आदमी के पास में धर्म अधिक है। यहां धर्म का अर्थ पूजा पद्धति इस प्रकार से लिया गया नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है कर्तव्य। मैं माता हूं तो मेरा मातृधर्म क्या है, मैं पिता हूं तो मेरा पितृधर्म क्या है, मैं बंधु हूं तो मेरा बंधु धर्म क्या है। हर माता पिता को लगता है कि मेरा मातृधर्म मेरा पितृधर्म अपने संतानों का लालन पालन करना और उनको अच्छे संस्कारित करना, यह मातृधर्म और पितृधर्म है। वैसे ही समाज का एक मैं अंग हूं तो समाज धर्म मेरा कौन सा है? तो समाज के बारे में चिंता करना, यह मेरा समाज धर्म है, यह जो जानता है उसको कहा है व्यक्ति। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। यह धर्म माने अपना कर्तव्य जानने वाले जो है उनको आदमी कहा है। ये यदि धर्म नहीं जानता तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, उसको पशु समझना चाहिए, ऐसे सुभाषितकार कहते हैं। और इसलिए कई बार संघ के स्वयंसेवकों ने निश्चित रूप से अपने सह क्षेत्र प्रचारक मान्य वशिष्ठदा का बौद्धिक सुना होगा। उसमें वो 4 व्यक्ति के प्रकार बताते थे। एक नराधम, दूसरा नर, तीसरा नरोत्तम और चौथा नारायण। जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है उसको नराधम कहेंगे। और ऐसे नराधम समाज में हम कई बार देखते हैं, रोज पेपर का पन्ना उल्टाइए तो कहीं पर डकैती हुई है, कहीं पर चोरी हुई है, कहीं पर हत्या हुई है, कहीं पर बलात्कार हुआ है। ये सारा करने वाले ये नराधम है। दूसरा जिसको अपने धर्म का ज्ञान है, अपने कर्तव्य का ज्ञान है और वह कर्तव्य करने के लिए प्रयास भी करता है, लेकिन दोनों तरफ सामंजस्य रखना उसके लिए थोड़ा कठिन जाता है, लेकिन प्रयास करता है, उसको नर कहा हुआ है। लेकिन अपना धर्म जानकर उस धर्म की दिशा में अग्रसर होते हुए दूसरों के लिए चिंता करने वाला, अपना स्वयं का थोड़ा नुकसान हो गया तो भी चलेगा, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़ने वाला, उसको नरोत्तम कहा गया है। और अपने बारे में कुछ भी विचार न करते हुए केवल दूसरों का ही विचार करेगा, उसको नारायण कहा है। और इसलिए कई बार बहुत विपत्ति में पड़ने वाला एखादा व्यक्ति, उसको जो सहायता करता है वो कहता है कि भैया तुम मेरे लिए भगवान हो। तो ये नराधम से लेकर नारायण तक ये जो यात्रा है व्यक्ति की, उस यात्रा में सहायता करने वाला संघ का यह कार्यक्रम है। अपने केरल के एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक, पहले अपने बौद्धिक प्रमुख थे,
रंगाहरी जी, वे कहते हैं कि संघ एक साइको सोशल थेरेपी है। साइको सोशल थेरेपी एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की एक चिकित्सा पद्धति मैंने संघ है। यानी क्या? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण बताया केरल का, कि केरल में एक कम्युनिस्ट व्यक्ति जिसका एक ही धंधा रहता था कि सुबह से लेकर शाम तक संघों को गाली देना। संघ ऐसा है, संघ वैसा है, दिन भर जहां जहां पर सभा होगी वहां पर वो संघों को गाली देता था। लेकिन शाम होते होते वो अपनी सारी सभाएं समाप्त करके घर में आ जाता था। ये उसका नियम था कि दिन भर में जितनी सभाओं में भाषण देता है भाषण देंगे, लेकिन शाम को 5 बज गए कि वो सारा छोड़कर वो घर में आता था। कारण क्या? कि उसका एक लड़का, एकमात्र लड़का, यह थोड़ा बुद्धि से अपंग था और इसलिए बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात डॉक्टरों ने उसको बताया कि इसका मन, इसका स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब ये सदा ही आनंदी रहेगा। इसको कभी दुख मत दीजिए, आनंद में रहेगा तो इसका विकास होता जाएगा। और इसलिए वो नेता अपने पुत्र को कहीं घुमाने लेकर जाता था, कहीं पर बाजार में लेकर उसको जो चाहिए वो उसको खरीद कर देता था। ऐसा सारा उसका चलता था। एक दिन अचानक अपने बेटे को स्कूटर से ले जाते समय उसको ध्यान में आया कि बच्चा अपने स्कूटर पर उछल रहा है, हंस रहा है बड़ा जोर जोर से। क्या हो गया? तो उसने देखा कि लड़का वो रास्ते के दाहिने तरफ एक मैदान था, उस मैदान में कुछ लड़के खेल रहे थे, उस खेल की तरफ देख रहा है। उसने देखा ये क्या है, उसने अपनी स्कूटर रोकी और देखा कि क्या चल रहा है। तो वो जो चल रहा था उसको देखकर ये लड़का बड़े खुशी से नाच रहा था। खेलने के लिए भेजो ना, उसने अनुमति दी, ये खेलने गया। फिर उसने खबर ली कि ये खाए क्या, तो किसी ने बताया कि ये आरएसएस की शाखा है। थोड़ा अटपटा सा लगा कि मैं दिन में संघों को गाली देता हूं और शाम को मेरे बच्चे को मैं संघों में भेज रहा हूं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसके ध्यान में आया था कि बच्चा का स्वास्थ्य सुधार रहा है और इसलिए उसने उसको मान्यता दी। कुछ दिन हो गए, विजयदशमी का कार्यक्रम आ गया, तो मुख्य शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गणवेश खरीदकर पूर्ण गणवेश में कार्यक्रम में उपस्थित होना है। अब इसके पास में गणवेश नहीं था, इसने घर में आकर पिता को कहा कि मुझे गणवेश चाहिए। पिता बोले जाओ ले लो। नहीं, आपको चलना होगा। अब पुत्र मोह के कारण वह अपने बच्चे को लेकर संघ के कार्यालय में गया। संघ के कार्यालय में उनको देखकर तो लोगों को आश्चर्य लगा। वो पूछने लगे, भाई साहब ये आरएसएस का कार्यालय है, सीपीएम का नहीं। बोले हाँ मेरे को पता है। बोले कैसे आए आप? बोले मुझे गणवेश चाहिए। और आश्चर्य लगा, भाई साहब आपको गणवेश? नहीं, मेरे बच्चे के लिए चाहिए। वो गणवेश उन्होंने खरीदा और फिर वहां पर जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं को कहा कि मैं जीवन भर आरएसएस को गाली देते आया हूं, लेकिन संघ क्या है ये मुझे गत कुछ 1 वर्ष से 2 वर्ष से मेरे ध्यान में आ गया कि मैं जो बोल रहा था वो गलत था। मेरे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, इसका कारण संघ की शाखा है। और बाद में कहते हैं कि वो भी संघ के स्वयंसेवक बन गए। अब ये कहानी बताते हरि जी कहते हैं कि संघ की शाखा में क्या होता है ये तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों के माध्यम से मन पर इस प्रकार का संस्कार होता है कि व्यक्ति का अपने आप विकास होते जाता है। और इसलिए इसको एक साइको सोशल थेरेपी ऐसा वो कहते हैं। अभी कुछ 1 साल 2 साल पहले की बेंगलुरु की भी इसी प्रकार की घटना है। हम शाखा में खेल खेलते हैं, 2 गति होती है, इधर कुछ लड़के खड़े रहते हैं, इधर कुछ लड़के खड़े रहते हैं और गुरु कहने के पश्चात इधर के सारे शहर से दौड़ते दौड़ते सामने जो खड़े हैं उनके पैर के नीचे से जाते हैं और
बीच के ऊपर से छलांग मारकर अपने स्थान पर आते हैं। जो पहले आता है वो जीतता है। अब ये खेल चल रहा था एक शाखा में, समाप्त होने के बाद प्रार्थना हो गई और रास्ते से ये सारा दृश्य देखने वाले कुछ लोग, चार पांच लोग वो अंदर आ गए। उसने वो मुख्येश्वर को एकदम आलिंगन दिया, बताया कि भैया तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ पर शाखा ले रहा हूँ, आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एनजीओ चलाते हैं। गत 10 वर्ष से हमारा प्रयास है कि समाज में एक सामाजिक समता होनी चाहिए, लेकिन बहुत प्रयास करने से भी हम उसमें यशस्वी नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि शाखा में ये सारे जो आ रहे हैं, इसमें कुछ उच्च वर्ग के हैं, कुछ तथाकथित निम्न वर्ण के हैं, लेकिन वो उच्च वर्ण के लड़के भी निम्न वर्ण के लड़कों के पैर के नीचे से जाते थे और पीठ के ऊपर से कूदकर अपने स्थान पर वापस आते थे। यही निम्न वर्ण के लोग भी पीठ के ऊपर से छलांग मारते थे। एक दूसरे का स्पर्श हो रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर एक दूसरे को गाली नहीं दे रहा है। ये क्या किया तुमने? वो कहता है हम तो किसी को जाति पूछते नहीं है। शाखा में जो आता है वो हमारे भारत माता का पुत्र है और हम सब इसी समाज के अंग है। यही हमारे मन में सबके मन में भाव रहता है। आपने तो केवल खेल देखे, लेकिन हम यहाँ पर जब सामूहिक हमारा भोजन होता है, उस भोजन में प्रत्येक अपने अपने घर से टिफिन लाता है, वो टिफिन सब मिलकर खाते हैं। कोई एक दूसरे को पूछता नहीं है कि तुम कौन से जाति का हो। सामाजिक समरसता का यह भाव प्रत्येक के मन में इन्हीं सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आता है। प्रार्थना हम गाते हैं, प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता। हम इस राष्ट्र के अंगभूत है और अंगभूत होना हम है, ऐसा जब बोलते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह मेरा अपना हो जाता है, मेरे परिवार का एक अंग हो जाता है। और फिर उससे जो कुछ अपेक्षा अपनी होती है, वो जैसे हम घर में अपने भाई से, अपने माता से व्यवहार करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं, वही अपेक्षा और वही व्यवहार समाज में संघ के स्वयंसेवक करते हैं। और इसीलिए जहां पर विपद आपको देखने को मिलता है, वहां पर सबसे पहले पहुंचता है संघ का स्वयंसेवक। क्या मिलता क्या है संघ के स्वयंसेवक को? कुछ नहीं मिलता। अपने घर में अपने परिवार के लिए काम करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, ऐसा मैं कभी कहता ही नहीं हूं, ना अपेक्षा करता हूं। वैसा ही संघ का स्वयंसेवक किसी से भी यह अपेक्षा नहीं करता कि मुझे इसके बदले में आप कुछ दो। निस्वार्थ भाव से काम करने वाला संगठन माने आरएसएस, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसे लोग कहते हैं। और इसलिए संघ का यह जो कार्य अभी 100 साल पूरे होने तक आ रहा है, इसमें समाज सारा संघ को समझे, संघ के इन कार्यक्रमों को देखकर संघ का उद्देश्य क्या है ये लोग समझे, इसके लिए ये सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और हमें आनंद है कि इन 97 वर्षों में कम से कम हमने इतना तो उपलब्धि पाई है कि जो पहले अपने स्वयं को हिंदू कहने में लज्जा करते थे, हमको गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो, ऐसे जो कहते थे, ऐसे ही सारे लोग अभी मैं कैसा एक पक्का हिंदू हूं ये दिखाने लगे हैं। कपड़े के ऊपर से जलवा पहनकर घूमने वाले ऐसे लोग हमने देखे हैं। मैं हिंदू हूं ये दिखाने के लिए कैलाश की यात्रा करने वाले ऐसे लोग देख रहे हैं। और इसलिए जगह जगह पर इस प्रकार का जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, यह परिवर्तन हिंदुत्व का उत्थान यह हो रहा है, इसका प्रदर्शन है। और इसलिए इतने साल हमने जो कार्य किया, वो सारा कार्य निरपेक्ष दृष्टि से, निस्वार्थ दृष्टि से किया, उसका फल हमको मिल गया। 97 वर्षों में कम से कम हमने इतना तो उपलब्धि पाई है कि जो पहले अपने स्वयं को हिंदू कहने में लज्जा करते थे, हमको गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो, ऐसे जो कहते थे, ऐसे ही सारे लोग अभी मैं कैसा एक पक्का हिंदू हूं ये दिखाने लगे हैं। मैं हिंदू हूं ये दिखाने के लिए कैलाश की यात्रा करने वाले ऐसे लोग हमने देखे हैं। और इसलिए जगह जगह पर इस प्रकार का जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, यह परिवर्तन हिंदुत्व का उत्थान यह हो रहा है, इसका प्रदर्शन है। और इसलिए इतने साल हमने जो कार्य किया, वो सारा कार्य निरपेक्ष दृष्टि से, निस्वार्थ दृष्टि से किया, उसका फल हमको मिल गया।
लेकिन यही सारे समाज को और नीचे तक जाए, आखिरी व्यक्ति तक जाए, इसलिए अपना प्रयास अभी कार्यरत है। मैं आशा करता हूँ कि और 2 साल में अपना कार्य सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी होने के लिए सभी स्वयंसेवक पूर्ण शक्ति से काम में लगेंगे। वर्ष प्रतिपदा का ये उत्सव नया संकल्प का उत्सव है और इसलिए हम सभी संकल्प लें कि हम जो अभी 2 वर्ष में अपना समय लेकर संघ का कार्य पूरा करने के लिए पूरा परिश्रम करके आगे आएंगे। आज के लिए इतना ही। ভিতরে যাব পাৰিব।